ناظرین السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ رنگا ریڈی کے پوڈتور میں ایکسپیریم ایکو فرینڈلی پارک کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، کابینی وزراء کے علاوہ چرنجیوی کی شرکت۔ ریونت ریڈی ریتو بندھو کو روک دیں گے۔ نلگنڈے کے لیے کومٹی ریڈی، وینکٹ ریڈی اور اتم کمار ریڈی نے کچھ نہیں کیا، کے ٹی آر کا الزام۔ شہر میں مختلف مقامات پر دلخراش حادثے۔ بہادر پورہ فلائی اوور پر 3 نوجوان جاں بحق۔ میڈچل اور شیخ پیٹ میں 2 طالب علم ہلاک۔ ترمل گری پولیس اسٹیشن کے 2 ملازمین رشوت لیتے ہوئے گرفتار۔ پولیس محکمے کی نیک نامی پر اٹھے سوال۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹوری چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سپریٹ ہال، وسیع اور سیکیور پارکنگ، لیڈیز اور جینٹس کے لیے 2 لفٹس کی سہولت۔ آپ کے بجٹ کے مطابق بکنگ پیکیجز۔ کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال، 7 ٹومس روڈ، beside الصبا ہوٹل، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس with suggested interior، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن، beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومس، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپنے کابینی رفقا اور فلم اداکار و سابق MP چرنجیوی کے ہمراہ رنگا ریڈی کے پوڈتور میں ایکسپیریم ایکو فرینڈلی پارک کا افتتاح جان دیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا، وقارآباد کی آب و ہوا لاکھوں روپے کی دوا ہے۔ نظام طور حکومت نے اسی جنگلاتی علاقے میں میڈیسن پلانٹس قائم کیے گئے تھے۔ ریاست کے دوسرے علاقوں کی بنسبت وقارآباد کا درجہ حرارت 2 یا 3% کم ہوتا ہے۔ ٹی بی کے مریضوں کو وقارآباد میں علاج کے لیے رکھا جاتا تو وہ 2 مہینوں میں صحت یاب ہو جایا کرتے تھے۔
हम जल्द ही वकाराबाद के इलाके को एक माहौलियाती सियाहती मुकाम के तौर पर तरक्की देने जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को कुदरती जंगल में तब्दील करने का इरादा रखते हैं। वजीर आला ने कहा कि जल्द सियाहती पॉलिसी लाई जाएगी। हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए कुछ पॉलिसियां लाने जा रहे हैं ताकि हर तालिब इल्म अपनी माँ के नाम पर एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे। वजीर आला की जबान में लग़ज़िश देखी गई। टीबी को उन्होंने पहले लिपरेसी कहा, फिर बाद में रुकन असम्बली के यादैया ने उनके कान में कुछ कहा, उसके बाद उन्होंने टीबी कहकर मुखातिब किया। इस तकरीब में कांग्रेस पार्टी के अरकाने मुखरना भी मौजूद थे। టెంపుల్ టూరిజం, హెల్త్ టూరిజం, ఎకో టూరిజం, ఒక రాష్ట్రం యొక్క ఆదాయం పెరగాలి, ఒక రాష్ట్రానికి గుర్తింపు రావాలి అని అంటే పరిశ్రమలు, పెట్టుబడులే కాదు, ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్న టెంపుల్ టూరిజం, ఎకో టూరిజమే ఆ రాష్ట్రం యొక్క ఆదాయాన్ని పెంచడమే కాకుండా రాష్ట్రం యొక్క గుర్తింపు గౌరవాన్ని కూడా పెంచుతుంది. ఈరోజు మనకు సంబంధించిన మిత్రులు కావచ్చు, బంధువులు కావచ్చు, చాలామంది వాళ్ళ పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు చేయాలన్నా, శుభ కార్యక్రమాలు ఏమైనా చేయాలి అని అంటే మన ప్రాంతం కాకుండా రాజస్థాన్కో లేకపోతే ఇతర దేశాల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ కార్యక్రమాలు చేసుకుంటున్నారు. దానికి ప్రధానమైన కారణం ఆ ప్రాంతంలో ఉండే టెంపుల్ టూరిజం, అదేవిధంగా ఎకో టూరిజం. बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि रेवंत रेड्डी रैतू बंधु को रोक देंगे। उनका यह भी कहना था कि यहाँ पर आरोग्य श्री वायस राजशेखर रेड्डी की याद दिलाती है, जबकि रैतू बंधु केसीआर की याद दिलाती है, लेकिन रेवंत रेड्डी उसे खत्म करना चाहते हैं। केटीआर ने कहा कि रियासती वज़रा कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी इसी जिले के हैं, लेकिन आज उनमें गुरूर और तकब्बुर आ चुका है। ये दोनों वज़रा नलगुंडे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। केटीआर ने यह भी कहा कि हमने यदाद्री को तरक्की दी, नलगुंडे के लिए कई इक़दाम किए। केटीआर के दौरे के दौरान नलगुंडे में सीएम के नारे भी लगाए गए। ఫ్లోరైడ్ పరిస్థితి గురించి కూడా కేసీఆర్ గారే పాట రాసిండు కదా, బ్రహ్మాండమైన పాట రాసిండు. సూడు సూడు నల్లగొండ, గుండె నిండా ఫ్లోరైడ్ బండ అంటూ ఇక్కడ కాళ్ళు చేతులు నడుమంకర పోయిన లక్షలాది మంది గురించి కూడా కేసీఆర్ గారే రాసిండు కదా అని చెప్పి నిరంజన్ రెడ్డి గారు వెంటనే అందుకున్నారు. ఇవాళ కొంతమంది తెలిసి తెలియని మూర్ఖులు, తెలిసి కూడా తెలియకుండా అజ్ఞానంతో మాట్లాడుతున్న వాళ్ళకు ఒక మాట చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. మొన్న అసెంబ్లీలో ఒక మంత్రి గారు అడుగుతాడు, ఏం చేసిండు కేసీఆర్ నల్లగొండకని అడిగిండు. నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా ఆ మంత్రి గారికి, నల్లగొండ జిల్లా ముద్దు బిడ్డలందరికీ, ఇక్కడికి వచ్చిన రైతు బిడ్డలందరికీ, ఏం చేసిండు తెలంగాణను కేసీఆర్ అంటే భారతదేశంలోనే పంజాబ్ను, హర్యానాను తలదన్ని వరి పండించే విషయంలో భారతదేశంలోనే తెలంగాణను నెంబర్ 1 చేసిండు కేసీఆర్. తెలంగాణ భారతదేశానికి నెంబర్ 1 అయితే మొత్తం తెలంగాణలో నల్లగొండ జిల్లా వరి ధాన్యం ఉత్పత్తిలో నెంబర్ 1 చేసిండు కేసీఆర్ అనే మాట గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. वजीर आला रेवंत रेड्डी ने डावोस में हुए माहदों को एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि करीब 1,80,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ कंपनियों के साथ माहदे किए गए। हैदराबाद में सरमाकारी के आने वालों के लिए वो शुक्रिया अदा करते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि यह मुसलसल चलने वाला अमल है। वजीर आला ने कहा कि इस मामले में सियासी तौर पर मुखालिफत के बावजूद रियासत ने तरक्की के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं। सियासी तनाज़े में नहीं पड़ने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि रियासत में सरमाकारी के लिए दरकार अराजी और दीगर सहूलतों के मामले में इदारों को तरगीब दी गई है। इसके लिए 20 इदारों के साथ माहदे किए गए। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत यहाँ पर पूरों के साथ ताउन करेगी और रियासत में सनतों के क़याम के लिए भी मुमकिना ताउन फराहम करेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम सबको मिलकर तेलंगाना के लिए तरक्की के लिए काम करना है। उनका कहना था तेलंगाना रियासत को नंबर 1 रियासत बनाना हमारा मकसद है। उन्होंने कहा कि सिंगापुर हुकूमत के ITE इदारों के साथ माहदे किए गए। ये मुस्तकिल रियासत की टेक्नोलॉजी में इजाफे के लिए किए गए माहदे हैं। दूसरी तरफ साबिक वजीर और बीआरएस पार्टी के लीडर हेरी श्राव की तरफ से ये कहा गया है कि डावोस के माहदों का जिक्र करना अहम है या फिर किसानों का खर्च अहम है। मीडिया से इस तरह से बात करते हुए हरीश राव का ये कहना था कि डावोस के दौरे पर कोई प्रेस रिलीज का यहाँ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रेस मीट की जा रही है।
उनका यह भी कहना था कि डाउस का दौर खत्म हो चुका है, अब क्यों उस पर बाजा बजाया जा रहा है। हुकूमत को पहले किसानों के कर्ज पर तवज्जो देने की जरूरत है। किसान रैतु भरोसे का इंतजार कर रहे हैं। रियासत के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने उस्मानिया हॉस्पिटल के डिजाइन के लिए यानी कि जो नई इमारत तामीर की जा रही है उस सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस जायजा इजलास में यह बताया जाता है कि 25 जनवरी को वजीर आला रेवंत रेड्डी ने डिजाइन में तब्दीली से मुतल्लिक जो हिदायत दी गई थी उस ताल्लुक से जायजा इजलास में तबादले ख्याल किया गया। वजीर आला ने जो तब्दीली की थी उस पर वजीर सेहत ने ओहदेदारों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया। इजलास में इमारत और शवारे महकमे सेहत के आला ओहदेदार मौजूद थे। वाज़ेह है कि 31 जनवरी को उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत का संग बुनियाद रखा जाएगा। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली पायल शंकर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने अवाम से जो वादे किए थे उसे पूरा करने में नाकाम हो गई है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, इंटेलिजेंस के जरिए यह साबित हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी पद्मा अवार्ड्स को लेकर बहस करना चाहती है। अब तक गांधी खानदान के वफादार रहने वालों को अवार्ड दिए गए। मोदी हुकूमत आने के बाद शफाफ अंदाज में अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पद्मा अवार्ड्स पर कोई सियासत नहीं होती। आम आदमी को भी मरकजी हुकूमत ने अवार्ड दिया है। उन्होंने कहा कि अवाम ने इख्तियार दिया है, इसका मतलब तनाज़ात खड़ा करना नहीं। चारे का भुलाकर यहाँ पर सबको मिलकर काम करना चाहिए। कांग्रेस की हुकूमत काम कम और बातें ज्यादा करती है। बीआरएस पार्टी के लीडर आरएस प्रवीण कुमार की तरफ से वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारसिंगी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। मीडिया से बात करते हुए प्रवीण कुमार ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी के नाकिस फैसलों की वजह से रियासत का नुकसान हो रहा है। इसी वजह से यहां पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उनका कहना था कि पुलिस को इस सिलसिले में कार्रवाई करनी चाहिए। शहर हैदराबाद में शबे मेराज के मौके पर मुख्तलिफ मसाजिद में यहां पर जलसे मेराजुल नबी सल्लम का इनेकाद अमल में लाया गया। मक्का मस्जिद में इमाम हाजा ने वाक़यात मेराज की तफसीली तौर पर बयान किया। मस्जिद दारुशफ़ा और मस्जिद चौक में भी जलसे मुनक़िद हुए। अमीर इमारत मिलत इस्लामी आंध्र प्रदेश व तेलंगाना मौलाना हुसैनुद्दीन सानी जाफर पाशा ने खिताब किया। मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तलकीन की गई। खिलवत मुबारक, चंचलगुड़ा ग्राउंड, कुली कुतुब शाह स्टेडियम और दूसरे मकामात पर भी मेराजुल नबी सल्लम के जलसे मुनक़िद किए गए। मसाजिद में उम्मत मुस्लिमा के लिए रिक़त अंगेज़ दुआ की गई। शब मेराज के मौके पर तारीखी मक्का मस्जिद के अलावा दूसरी मसाजिद को भी बरक़ी कुमकुमों से मुनव्वर देखा गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में हल्क़े नामपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम जारी हैं। नुमाइंदा रुकन बल्दिया डॉक्टर कासिम ने अपने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाक़ाजात का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मायना किया। विजयनगर कॉलोनी में जीएचएमसी के डिप्टी कमिश्नर के हमरा ज़ेर इल्तिवा जंक्शन, फुटबॉल ग्राउंड कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल के तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। इसके लिए 93 लाख रुपए सर्फ किए जा रहे हैं। इसके अलावा सफदरिया पार्क के लिए 98 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुकामी मजलिस के इब्तिदाई सदर मुतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। हैदरा की तरफ से अमीनपुर के इलाके में इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई है। संगारेड्डी जिले के अमीनपुर झील के पास फिर गैर मजाज तामीरात को मुनद्दम किया गया। तफसीलात के मुताबिक पेद्दा चिरुई के पास आंध्र प्रदेश के साबिक एमएलए की तरफ से की गई मुबैना गैर मजाज तामीरात को मुनद्दम किया गया। इसके अलावा ज़ेर तामीर ढांचों को भी मुनद्दम कर दिया गया। बताया जाता है कि बाज़ अफराद की शिकायत पर हैदरा की तरफ से ये इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। इस मौके पर पुलिस का भी वसीतर बंदोबस्त देखा गया। प्रजा भवन के पास 2008 के डीएससी के उम्मीदवारों की तरफ से एहतजाज किया गया। बताया जाता है कि एहतजाजी उम्मीदवारों ने यह कहा कि हुकूमत ने उन्हें मुलाजमतों की फराहमी का वादा किया था। सितंबर में सर्टिफिकेट्स की जांच की गई थी, लेकिन आज 5 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें मुलाजमत फराहम नहीं की गई। उम्मीदवारों का कहना था कि फौरी उन्हें मुलाजमतें फराहम की जाएं। सिटी कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद की सरपरस्ती और निगरानी में शब मेराज के मौके पर पुलिस के वसीतर इंतजाम देखे गए। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने शब मेराज के इंतजाम का जायजा लेने के लिए सौजोन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। चार मीनार के पास भी कमिश्नर पुलिस ने दौरा किया। इस मौके पर डीसीपी सौजोन इस्तेहाम मेहरा भी उनके हमरा मौजूद थीं।
हुसैन सागर में इतवार को महाआरती के प्रोग्राम के दौरान कश्तियों में आग लगने के वाकये में एक शख्स झुलस गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। बताया जाता है कि गणपति नामी शख्स 80% झुलस गया था और उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। इलाज के दौरान गणपति की मौत हो गई है। एक और नौजवान जो कि तफरीह के लिए कश्ती में गया था, अजय, वो अभी तक लापता बताया जा रहा है। उसके अफराद खानदान का कहना है कि पुलिस की तरफ से या फिर इंतजामिया की तरफ से इस बारे में उन्हें कोई इत्तला नहीं दी जा रही है, लेकिन अजय की अभी भी तलाश की जा रही है। शहर हैदराबाद में 24 घंटों के दौरान पेश आए दिलखराज सड़क हादसों में यहां पर 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 4 तालिब इल्म बताए जा रहे हैं। जू पार्क से आरामगढ़ नए फ्लाईओवर पर पीर और मंगल की दरमियान शब हुए दिलखराज सड़क हादसे में 3 दोस्त जाँ बहक हो गए। इन तीनों की उम्रें 16 से 17 साल के दरमियान बताई गई हैं। तफसीलात के मुताबिक ये नौजवान जिस टू व्हीलर पर जा रहे थे, बेकाबू होकर डिवाइडर और खंबे से टकरा गई। इस हादसे में बहादुरपुरे के साकिनान मोहम्मद अहमद, माज कादरी और मगलपुरे के साकिन इमरान जाँ बहक हो गए। अहमद और माज कादरी की मकाम वाक़े पर ही मौत हो गई थी। इमरान इलाज के दौरान जाँबर न हो सके। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तेज रफ्तार राइडिंग हादसे की वजह बताई जा रही है। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन को हॉस्पिटल रवाना किया। रुकन असम्बली की निगरानी में पोस्टमार्टम का अमल अंजाम दिया गया और मैयतें वर्षा के हवाले की गईं। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मरहूम नौजवानों के अफराद खानदान को पुरसा दिया और सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का ताज़ियती पैगाम पहुंचाया। उमूमन शब मेराज के मौके पर फ्लाईओवर्स को बंद रखा जाता है। चूंकि यह फ्लाईओवर एयरपोर्ट शाहरा से मरबूत है, इसलिए इसे खुला रखा गया था। 3 दोस्तों के एक साथ जहाँ होने पर अफराद खानदान में गम का माहौल देखा गया। दूसरी तरफ मनीगुंडे के पास हुए सड़क हादसे में यहां पर तालिबा की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मनीकुंडे में यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तालिबा अपने वालिद के साथ स्कूल जा रही थी। 10 साला तालिबा अपने वालिद के साथ टू व्हीलर पर मनीकुंडे में वाक़ स्कूल जा रही थी। शेखपेट के करीब लारी ने उनकी टू व्हीलर को टक्कर दे दी। कमसिन तालिबा टू व्हीलर से गिरकर लारी के पहिए की जद में आकर हलाक हो गई। लड़की के वालिद को जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। महलूक तालिबा के वालिद खानगी न्यूज़ चैनल के मुलाजिम बताए जा रहे हैं। फिल्मनगर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। गोडी मलकापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में हुए सड़क हादसे में 4 दोस्त यहां पर जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि यू टर्न लेने के दौरान ये हादसा पेश आया और इस हादसे के दौरान 4 नौजवान जख्मी हो गए हैं। पिलर नंबर 30 के पास यू टर्न लेने के दौरान इस हादसा हुआ है और यहां पर जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अफराद खानदान ने जख्मी नौजवानों के लिए दुआ करने की अपील की है। मेरचल में हुए एक और सड़क हादसे में 10वीं जमात का तालिब इल्म हलाक हो गया है। महलूक की शिनाख्त यहां पर तेजस चौधरी की हैसियत से की गई है। बताया जाता है कि तेजस को एक लारी ने टक्कर दे दी और बरसरे मौका उसकी मौत हो गई है। इस तरह से 24 घंटों के दौरान हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर हुए हादसों में 5 अमवात हुई हैं, जिसमें से 2 तलबा शामिल हैं। नाचारम के इलाके में वाक़ दिल्ली पब्लिक स्कूल में बम रखे जाने की इत्तला झूठी साबित हुई। बम रखे जाने की इत्तला ईमेल के जरिए मौसूल हुई थी। उसके फौरी बाद बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को तलब कर लिया गया था। इत्तला की वजह से स्कूल में अफरा तफरी देखी गई। तलबा भी स्कूल के अहाते में अफरा तफरी के आलम में बाहर निकल आए। इससे पहले भी स्कूल में बम रखे जाने की इत्तला मौसूल हुई थी, लेकिन वो इत्तला भी झूठी साबित हुई थी। सरपरस्तों में भी बेचैनी देखी गई थी और कई सरपरस्त स्कूल पहुंच गए थे। तलबा को घर रवाना कर दिया गया था। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। बीवी का कत्ल करने के बाद कुकर में उसे पकाकर उसका पाउडर बनाकर तालाब में फेंकने वाले शख्स गुरुमूर्ति के बारे में नए इंकशाफात सामने आए हैं। रचाकुंडा पुलिस ने एक इंतहाई इंसानियत सोच कत्ल वाक़े की तहकीकात मुकम्मल करते हुए मुलजिम साबिक फौजी 39 साला गुरुमूर्ति को, जो कि DRDL में मुलाजमत करता है, उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। इस मुलजिम ने 16 जनवरी को अपनी बीवी 35 साला माधवी को अपने घर वाक़े जिलरगुड़ा में मामूली झगड़े के बाद कत्ल कर दिया था। कत्ल के बाद सबूत मिटाने उसने इंसानियत की धज्जियां उड़ा दी। गला दबाकर उसको हलाक करने के बाद उसने उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करे और फिर उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक गर्म पानी में डाला और कुकर में पकाया। हड्डियों को पाउडर बनाकर उन्हें यहाँ पर बताया जाता है कि बाद में पानी में फेंक दिया गया।
कमिश्नर पुलिस रच्चाकोंडा सुधीर बाबू की रहनुमाई में इस वाक़े की तहकीकात की गई और इसके सिलसिले में यहाँ पर यह भी इत्तला मिल रही है कि आज मुलजिम को जुर्म के मुकाम वाक़े पर ले जाया गया और फिर से सीन को रिक्रिएट किया गया और इस सिलसिले में पुलिस का यह कहना था कि इसे अदालत में पेश कर दिया गया है और इसको सख्त सज़ा देने के लिए कोशिश की जाएगी। इस कत्ल वाक़े की तहकीकात मुकम्मल हो गई है। मीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए इस वाक़े ने सारे मुल्क में सनसनी फैला दी थी। मकतूल खातून की गुमशुदगी की शिकायत उसकी मां ने यहाँ पर 18 जनवरी को की थी। उसके बाद जब शक हुआ तो पुलिस ने तहकीकात करते हुए उसके शौहर गुरुमूर्ति को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी से पता चला था कि दोनों मियाँ बीवी घर में दाखिल हुए थे, लेकिन बाद में सिर्फ शौहर बाहर निकला, बीवी बाहर नहीं निकली थी। इसी की बुनियाद पर जब पूछताछ की गई तो गुरुमूर्ति ने इस बेरहमाना कत्ल का एतराफ़ किया। महकमे इंसदाद रिश्वतस्तानी की तरफ से बदनवान ओहदेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस महकमे के कई मुलाजमीन भी इसकी जद में आ रहे हैं। तिरमलगिरी पुलिस स्टेशन के एक इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। तफसीलात के मुताबिक सुरेश और कांस्टेबल नागराजू की तरफ से एक केस के सिलसिले में शिकायत कुनिंदे से रिश्वत तलब की गई थी। बताया जाता है कि 3 लाख रुपए की रिश्वत तलब की गई थी और पहले तौर पर 1,40,000 रुपए की रिश्वत दी जा रही थी। शिकायत मिलने पर एसीबी ने जाल बिछाकर दोनों पुलिस मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले भी पुलिस मुलाजमीन रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। महकमे पुलिस की नेकनामी को इस तरह के बदनवान ओहदेदार मुतासिर कर रहे हैं। कुल्हिन सनती नुमाइश हैदराबाद की आबोताब के साथ जारी है। अवाम की बड़ी तादाद इसके मुशाहिदे के लिए आ रही है। कुल्हिन सनती नुमाइश में दाखिले के लिए अब QR कोड से भी टिकट हासिल किया जा सकता है। अब तक 1 लाख से ज्यादा अफराद ने QR कोड के जरिए यहां पर दाखिला लिया है। नुमाइश सोसाइटी के कन्वीनर बराए बुकिंग के दिलीप ने बताया कि यहां पर QR कोड के जरिए टिकट्स का पहली मर्तबा तजुर्बा किया गया है, जिसका जबरदस्त रद्देमल देखने में आ रहा है। उन्होंने कहा कि अवाम को कतार में खड़े होकर टिकट खरीदने की सहमत से बचाने के लिए QR कोड यहां पर दिया गया है। टिकट का यहां पर सही इस्तेमाल से अवाम को आसानियां फराहम की जा रही हैं, यानी कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अवाम को सहूलत पहुंचाई जा रही है। नुमाइश की गेटों, मेट्रो स्टेशन और वेबसाइट पर इस QR कोड को रखा गया है। इस कोड के जरिए टिकट हासिल हो जाता है और बासानी नुमाइश में दाखिला मिल सकता है। सोसाइटी के 2 यहाँ पर एजाजी अरकान हैं। 33 जिली कमेटियां बनाई गई हैं। नुमाइश की आमदनी से तालीमी और फलाही काम भी अंजाम दिए जाते हैं। इस साल हम एक नया तजुर्बा और नई चीज़ हम इम्प्लीमेंट किए हैं। उसमें QR कोड, आप कहीं पर भी बैठ के आप अपना टिकट बुक कर लेके स्ट्रेट अंदर आ सकते हैं और एग्जीबिशन का नज़ारा देख सकते हैं और बड़ी खूबी से आप इजीली एक्सेसिबल रहता ही है, ताकि कोई पब्लिक को कोई भी तकलीफ ना हो। इसी वजह से हमने एक नया इम्प्लीमेंट किया है। उसमें हम करीब 1 लाख के ऊपर हम टिकट ऑलरेडी बेच चुके हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। बहुत अच्छी सूचना है ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम 1 लाख लोगों को बिना तकलीफ के क्यू में खड़े वो एग्जीबिशन में आ सकते हैं। आंध्र प्रदेश के डीजीपी द्वारका तिरुमला राव की तरफ से ये कहा गया है कि आंध्र प्रदेश में साइबर जराइम में इजाफा होता जा रहा है और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि दूसरे जराइम में कमी आई है। श्रीकाकुलम में मीडिया से बात करते हुए आंध्र प्रदेश के डीजीपी ने कहा, साइबर क्राइम पूरे मुल्क में एक मसला बन चुका है और इस पर काबू पाने के लिए अहम इक़दाम भी किए जा रहे हैं। हर जिले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के क़याम का मंसूबा बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि बच्चों और बुजुर्गों पर जिनसी हमलों में इजाफा हुआ है और ये महज़िब समाज के लिए शर्म की बात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोरी चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दुल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट की सहूलत। आपके बजट के मुताबिक
booking packages. QMax Kohinoor Banquet Hall, 7 Tombs Road, beside Al Sabah Hotel, Tori Chowki, Hyderabad. QMax Builders and Developers आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, QMax सफायर, साजिद रेजिडेंसी, QMax मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रंगारेड्डी के पोडुतूर में एक्सपीरियम इको फ्रेंडली पार्क का इफ्तिताह। वजीर आला रेवंत रेड्डी, काबीनी वज़रा के अलावा चिरंजीवी की शिरकत। रेवंत रेड्डी रैतू बंधु को रोक देंगे। नलगुंडे के लिए कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी ने कुछ नहीं किया, KTR का इल्जाम। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर दिलखराश हादसे। बहादुरपुरा फ्लाईओवर पर 3 नौजवान जाँ बहक। मेरचल और शेखपेट में 2 तालिबे इल्म हलाक। तिरमलगिरी पुलिस स्टेशन के 2 मुलाजमीन रुश्वत लेते हुए गिरफ्तार। पुलिस महकमे की नेकनामी पर उठे सवाल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।